absolutely unbelievable. This is something that the Bible doesn't have, something that the Gita doesn't have, something that the Vedas doesn't have, the Book of Mormon, no other scripture. This man is a new revert. Not long ago, he shared a meaningful personal experience through a video on TikTok. In the video, he expressed his deep amazement upon discovering an extraordinary fact written in the Al-Quran. He recited a verse from Surah 27, verse 88, which states that mountains, though they appear solid and unmoving, are in fact moving like clouds. He explained that this verse has existed for more than 1,400 years, long before humans possessed scientific knowledge or advanced technology. At that time, people believed that mountains were fixed in place and could not move. Yet today, modern science confirms that mountains do shift slowly over millions of years due to the movement of the Earth's tectonic plates. The man admitted that he was astonished by how this verse aligns so precisely with modern scientific discoveries. Okay, guys, this is absolutely unbelievable. You have to listen to this verse. In the Quran, in chapter 27, verse 88, it says, "Now you see the mountains thinking they are firmly fixed, but they are traveling just like clouds. That is the design of God, who has perfected everything. Surely he is all aware of what you do." This was revealed by the Quran over 1400 years ago. The ancients used to believe that mountains are fixed forever. They never move. But the Quran claims here that mountains actually move. Scientists today using modern technology have in fact proven that yes, mountains do move little by little over millions of years. How could the Prophet Muhammad or any other ancient individual have correctly guessed that mountains move over millions of years? We can't see this happen with our own eyes. Truly incredible. This has to be from God. And if it was just a lucky guess, how many guesses can this guy get correctly? He was never proven wrong, even once. Absolutely unbelievable. This is something that the Bible doesn't have, something that the Gita doesn't have, something that the Vedas doesn't have, the Book of Mormon, no other scripture talks about these many scientific facts that people could not have known at the time, and only modern science proves to be true and has never been proven wrong. आदाब दोस्तों, आपने सुना इस बंदे ने क्या कहा। ये बंदा बहुत ज़्यादा कन्विंस है इस बात से कि कुरान में 1400 साल पहले ऐसी बात कैसे लिखी जा सकती है कि माउंटेन्स भी मूव कर रहे हैं। माउंटेन्स मूव कर रहे हैं, ये बात तो पिछले 50 या 100 साल पहले ही दरियाफ्त हुई होगी, लेकिन 1400 साल पहले अगर किताब ये कह रहा है कि माउंटेन्स भी मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है कि ये एक बहुत मिरेक्युलस किताब है, ये एक डिवाइन बुक है, ये खुदा की किताब है। इंसान की सलाहियत नहीं है, इंसान लिख ही नहीं सकता है, और इसका कहना भी सही होगा। लेकिन देखते हैं कि ये आयत क्या है, इसके आगे पीछे का देखते हैं कॉन्टेक्स्ट कि क्या लिखा हुआ है, तो समझ में आएगा कि पूरी बात क्या है। देखिए यहाँ 88 उसने कहा कि 27 नंबर सूरा की 88 नंबर आयत, यू thou sees the mountain think is firmly fixed but they shall pass away as the clouds pass away। ठीक है, इसी की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक लाइन ऊपर अगर जाएंगे, एक आयत ऊपर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये डे ऑफ रिसरेक्शन यानी क़यामत के दिन की बात हो रही है, जब दुनिया तबाह हो जाएगी, आसमान और ज़मीन सारी कायनात को अल्लाह ताला समेट देगा, चिटाई की जैसा लपेट देगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा हर एक चीज़, और इंसान खुदा के सामने खड़ा हो जाएगा। उस वक्त की बात है, ठीक है, यहाँ आप साफ देख सकते हैं। तो ये इसने किसी ने लिखा है, ये पासेस अवे यानी जैसे क्लाउड्स गुजरते हैं उसी तरह से। किसी ने विल शैल को इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ है बट दे शैल पास। इसका मतलब है ये फ्यूचर टेंस है। विल का मतलब होता है गी, मतलब मैं करूँगा या जाऊँगा या ऐसा हो जाएगा। तो शैल और विल का मतलब वही है। जो थोड़ा सा भी इंग्लिश जानते हैं, क्लास 5 तक भी इंग्लिश पढ़े होंगे, उनको अच्छी तरह से ये पता होगा विल और शैल का मतलब होता है फ्यूचर टेंस की वो चीज़, वो अल्फाज जो हम लोग हिंदी में जैसे वो हिंदी या उर्दू में हम लोग गागेगी जिसे कहते हैं, तो ये फ्यूचर की बात है। दूसरा राइटर ने इसको जो चीज़ है, जो विल वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो उसको गैप कर दिया है, ओमिट कर दिया है, और इसको ऐसे लिख रहा है जैसे प्रेजेंट की बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे उसने ठीक विल लिखा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि जब क़यामत, जब ट्रम्पेट बजाया, सूर फूके जाएंगे, तो ऐसा ऐसा होगा, आसमान और ज़मीन के हर लोग बहुत खौफज़दा हो जाएंगे और सब अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसने वो चीज़ लिखना बंद कर दिया, मीन्स
जो विल की जो यूज़ था वो बंद कर दिया और यू सी माउंटेन्स और प्रेजेंट टेंस में ये लिखना शुरू कर गए। यही वो वजह है जो वो बंदा इतना ज़्यादा कन्विंस हो गया कि ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी आयत को देखेंगे, दूसरे ट्रांसलेशंस को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा किसी ने लिखा है कि बादल की तरह उड़ते फिरेंगे। मतलब कोई कह रहा है कि उड़ेंगे, कोई कहता है कि मूव करता है, कोई लिखता है कि ट्रैवल कर रहे हैं, बादल जिस तरह से सफ़र करते हैं उसी तरह से, ठीक है? और यहाँ तो इस जो ये जो ऑनलाइन कुरान है, ऑनलाइन ये कुरान.com, इसमें क्या है, ये तो बेईमानी की हद ही पार कर दी। उसने यहाँ पे नाउ भी ऐड कर दिया। देखिए आप अपने अपने आँखों से देखिए, उसने नाउ ऐड कर दिया। नाउ का मतलब अब, लेकिन अब वाली बात नहीं है। जस्ट बिकॉज़ ये माउंटेन्स को सफ़र करवाने के लिए, माउंटेन्स क्लाउड की जैसा सफ़र करेंगे, माने मूव करेंगे, हरकत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लाउड के जैसा, बादलों के जैसा, उसको सही करने के लिए ये उसने नाउ ऐड कर दिया है। ये यही वजह है कि नाउ जो है, ये जो इस तरह का ट्रांसलेशन है, इसी तरह का ट्रांसलेशन से वो बंदा इतना ज़्यादा कन्विंस हो गया कि किसी न किसी बेईमान ने जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में की है, वो बहुत गंदे तरीके से की है, नाउ ऐड कर दिया है, जबकि नाउ ऐड नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे ऐसे इतना एश्योर हो सकता हूँ कि नाउ नहीं है? तो आपको मैं खुद ही दूसरी ऑनलाइन कुरान दिखाता हूँ, जो वर्ड बाय वर्ड है, वो वहाँ पे वतरा एंड यू सी, यहाँ पे नाउ का कोई ज़िक्र नहीं है। अगर आपको नाउ खोजना है तो आप ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेट में डाल सकते हैं कि नाउ का इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा। इन दोनों आयतों में कहीं पर भी नाउ का कोई ज़िक्र नहीं है, ठीक है? अगर ज़िक्र नहीं भी है तो चलिए, ज़िक्र नहीं है, सारा दारोमदार ये नाव के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ट्रांसलेशन बाकी ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट किए, वो साफ लिख रहे हैं कि ये बात हो रही है डे ऑफ जजमेंट की। एंड द डे ऑफ दैट द ट्रम्पेट विल बी साउंडेड एंड देन विल बी स्माइटन बाय द टेरर दोज हू आर इन हेवन। Thou seest the mountain and thinkest them firmly fixed, but they shall pass away as the cloud pass away। यहाँ पे साफ लिख दिया है। वो आप तो समझते हो कि माउंटेन फिक्स्ड है, लेकिन वो भी क्लाउड्स की तरह मूव करने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये आयत जो है, ये अभी के लिए नहीं है, ये आयत डे ऑफ जजमेंट के लिए है। जिस दिन सूर फूका जाएगा, दोबारा ज़मीन को तबाह अल्लाह ताला कर देंगे, उस वक्त की बात है। इसमें साफ लिखा हुआ है, लेकिन वो भी बादल की तरह उड़ते फिरेंगे, ये फ्यूचर वाली बात है, यहाँ पे साफ लिख दिया उन्होंने। तो कहीं कहीं पर ख़यानत की गई है, बेईमानी की गई है, आप साफ दे सकते हैं। कहीं पे नाउ ऐड कर दिया गया है, कहीं जो फ्यूचर वाले अल्फाज होते हैं, जो विल शैल, वो ओमिट कर दिया गया है। और कुरान में वैसे भी आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, अगर आयतें आप नज़र डालेंगे गौर से, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुरान पढ़ने के बाद आपको ये समझ में नहीं आता कि ये आयत प्रेजेंट के लिए है या पास्ट के लिए है या फ्यूचर के लिए। इसमें इज़, वॉज और विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब गा, गे, गी, या था, थे, थी, या है, हूँ, रहूँगा, रहे हैं, हो रहे हैं, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। ऐसे पार्टिसिपल्स या वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत कम है कुरान शरीफ में, जिससे टेंस का पता चले, दौर का पता चले कि वो हाल में है या माजी में है या मुस्तकबिल में है। तो ये वो कमी है या लिमिटेशन है कुरान शरीफ की, जिसकी वजह से लोग अपनी-अपनी मर्ज़ी से, अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने माइंडसेट से करामत साबित करने के लिए या जो भी साबित करने के लिए ट्रांसलेट करते हैं, और हज़ारों तरह से ट्रांसलेट करते हैं, हज़ारों तरह से इंटरप्रेट करते हैं, और जिनकी वजह से फ़िरके बनते हैं, मसलक बनते हैं, और कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो देखिए, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ में मैं फ़िनिश करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मैं कहूँगा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, सारी दुनिया यही समझेगी कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। इफ़ आई से आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो पूरी दुनिया का हर इंसान विदाउट एन एक्सेप्शन यही समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा ज़िंदगी में कि कोई बंदा कह रहा है कि इसने कहा कि मैं खाना खाऊँगा, इसने कहा है कि मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, कोई कह रहा है कि ये कॉलेज जाना चाह रहा है, कोई कहेगा कि ये पढ़ना चाह रहा है। ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि आई एम वेरी वेरी मच क्लियर, लाउड एंड क्लियर। लेकिन जब मैं कुछ और कहूँ, चीन मिन उनका, यमुना, ची चाची, पू पापू, इस तरह के अल्फाज मैं अगर सेंटेंस के तौर पर कह दूं, इस तरह के सेंटेंस अगर मैं कहूं, तो इसके जितने लोग सुनेंगे उतनी ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस होगी, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच क्लियर। क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं अपनी बात क्लियरली बोल भी नहीं रहा हूँ और ऐसी ज़ुबान में भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ जो वेरी मच क्लियर हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इम्कानात ये रहेंगे कि मैं हज़ारों तरह के ट्रांसलेशंस होंगे, हज़ारों तरह के लोग फ़िरके बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, और यही वजह है कि कुरान इतना क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से लोग हर इंसान अपने, हर मौलाना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तर्जुमा करने लगता है और उसको अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से 50 तरह के इंटरप्रिटेशंस हुए और तर्जुमा हुए और अलग-अलग बातें निकाली गई और कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। तो ये गलती मौलाना की नहीं है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, इस वजह से लोग अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी वो निकालते हैं और अपनी मर्ज़ी का निकालते हैं। उन्हें जो उनका माइंडसेट, एक चीज़ होता है इम्प्लाई और एक चीज़ होता है इन्फर। इंग्लिश में 2 वर्ड है, इम्प्लाई एंड इन्फर। इम्प्लाई का मतलब ये है कि मैं, जो स्पीकर है या जिसने जो कुछ लिखा है, वो क्या, उसकी क्या मर्ज़ी है, वो क्या कहना चाहता है, उसको कहते हैं कि इम्प्लाई। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जो स्पीकर है, जब मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये इम्प्लाई होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ, वो सामने वाला जिसे मैं कह रहा हूँ, वो वही इन्फर करे, ये ज़रूरी नहीं है। इन्फर करने का मतलब है मतलब समझना, और वो मतलब समझने वाला कुछ भी समझ सकता है। तो इन्फरेंस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से इन्फर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास क्लियरली इम्प्लाई नहीं किया गया है। कंफ्यूज्ड वर्ड्स है, ओमिटेड वर्ड्स हैं, फ्यूचर का है कि पास्ट का है कि क्या है। वर्ड्स भी ऐसे हैं कि एक वर्ड का कई मीनिंग निकल सकता है, और अगर नहीं भी है तो लोग खुद ब खुद निकाल लेते हैं उसके मल्टीपल मीनिंग्स। यहाँ पे कोई क्या, अगर नहीं है तो ये क्या वजह है कि कोई ट्रैवलिंग लिख रहा है, कोई मूविंग लिख रहा है, कोई पासेस लिख रहा है, कोई फ्लाइंग लिख रहा है। उर्दू में मैंने आपको दिखाया है, जो सऊदी अरब की ट्रांसलेशन है, वो उसमें साफ लिखा है कि उड़ने लगेंगे। जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ है, वो बादलों की तरह उड़ने लगेंगे। यहाँ ट्रैवलिंग है, और बाकी जो 2 ट्रांसलेशन सबसे पहले मैंने दिखा है, वहाँ पे मूव यानी पासेस अवे का अल्फाज है। तो यही सब वजह है, इतने सारे ये लोग इसमें तो कुछ क्लियर लिखा हुआ नहीं है कुरान में, और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है, और कन्फ्यूजन भी लोग अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करके, जो जिस जिस मुफस्सिर को या जिस ट्रांसलेटर को जो साबित करना होता है, वो अपनी मर्जी का वही लिखता है जो उसे साबित करनी है, और लोग इसे पढ़कर बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, कन्विंस हो जाते हैं कि ये गॉड की तरफ से है। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि ये माउंटेन मूव करता है, इस बारे में नहीं है। माउंटेन मूव करेगा, क़यामत के दिन उड़ जाएगा, चूर-चूर हो जाएगा, उसके बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर मेरी गलती है कुछ, या मैं समझने में गलती करूँ, तो डेफ़िनेटली आप लोग कमेंट के ज़रिए मेरी मदद करें कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात भी समझ में आई, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।